Hey, good morning student. In previous video we have started our exercise 4.1. We have to completed our two questions, first and second. Now today we are going to start our third question. Okay, solve the following equation by trial and error method. मैंने आपको पढ़ाया था ये मेथड ट्रायल करना मीन्स हिट करना. ओके मीन्स हम लोगों को जो अपने वेरिएबल्स रहते हैं उसमें वैल्यूज पुट कर करके देखना पड़ता है कि LHS और RHS ये सेम कैसे होता है. ठीक है. So we have to write here put first p is equal to 1 है ना. हम लोग LHS में 1 पुट करके देखते हैं हमारा ये एग्जाम्पल राइट है या नहीं होता है. ठीक है. So 5 multiplied by p plus 2 is equal to 70. Okay 5 plus p को 1 पुट करेंगे. 5 1 जा 5 plus 2 is equal to 70. It is possible? No, it is not possible. So इसको हम रॉन्ग कर देंगे. Then put p is equal to 2 है ना. Put p is equal to 2. So 5 into 2 plus 2 is equal to 17. 5 to the 10 plus 2 is equal to 17. It is possible है क्या? Then 12 plus 12 is equal to 17 means ये भी नहीं हो रहा है. Then उसके बाद हम लोग put p is equal to 3 पुट करके देखते हैं. ओके देन 5 of 3 plus 2 is equal to 17. 5 3 जा 15 plus 2 is equal to 17. So 15 plus 2 17 is equal to 17 means ये राइट है. यस. तो इस तरीके से हमने अपना ट्रायल करके देखा है. पहले p का इस वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करके देखी है तब भी हमारा आंसर नहीं आया. 2 पुट करके देखिए तब भी नहीं आया. 3 पुट किया तब हमारा आंसर आया. अंडरस्टैंड. नाउ द सेम क्वेश्चन हियर सेकंड. सो पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करके लिखेंगे. ओके 3 into 1 minus 14 is equal to 4. 3 into 1 how much it is? 3 minus 14 is equal to 4 means 3 minus 14 how much? It is minus 11 is equal to 4 means ये क्या आया? रॉन्ग आया. देन उसके बाद पुट n is equal to 2. ओके देन 3 of 2 minus 14 is equal to 4. 3 of 2 it is 6 minus 14 is equal to 4 means इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 minus 6 8 is equal to 4 minus 8 is equal to it is not possible. Then put n is equal to 3 करके देखो. 3 into 3 minus 14 is equal to 4. 9 minus 14 is equal to 4 not possible means minus 5 is equal to 4. ये नहीं है. Then put n is equal to 4. 3 into 4 minus 14 is equal to 4. 3 into 4 कितना आता है? मीन्स minus 2 is equal to 4 not possible. ये भी रॉन्ग आया अपना. ओके पुट n is equal to 5. 3 into 5 minus 14 is equal to 4. 5 is 15 minus 14 is equal to 4 means 1 is equal to 4. ये भी नहीं आया. देन यहाँ पर करके देखो. पुट n is equal to 6. ओके सो 3 into 6 minus 14 is equal to 4. 3 6 18 minus 14 is equal to 4. 18 minus 14 is 4 is equal to 4 means जो हम लोग m को पुट कर m की वैल्यू 6 पुट करते हैं तब जाके हमारा ये आंसर राइट है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ इन फोर्थ इक्वेशन fourth question write the equation for the following statement means हमें यहाँ पर statements दिए हैं उनसे हमें equations create करने हैं. So what we have to do? अभी तक हमें equations दिया जाता था उसको हमें solve करना था. Now in this question we have some statements and we have to create the equations of that
the sum of number x and 4 is 9. Sum of numbers x and 4 means दोनों का x और 4 का sum is 9 होता है. So x plus 4 is equal to 9. इसका ये इक्वेशन रहेगा. Understand student? Now the next 2 subtract from y is 8. y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो 8 आ जाता है. सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y minus 2 is equal to 8. Okay? Then next 10 times a is 70. 10 times a को 10 times लिखो. Okay? 10a is 70. Understand? Now here the number b divided by 5 gives 6. The number b को डिवाइडेड बाय 5 करो तो आंसर क्या आता है? 6 आता है. यस, अंडरस्टैंड है ना? इजी. देन 3/4 ऑफ t इज 15. 3/4 हमने पढ़ा था लिखना. यस, इन फ्रैक्शन 3/4 ऑफ t. ओके, t का 3/4 ऑफ 15. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ, अब आपको समझ में आएगा. Okay, then here 7 times n plus 7. 7 times n. 7 times n plus 7 gets you 77. Okay, the next 1/4 of a number x. 1/4 of a number x. Okay, minus 4 gives you 4. Okay, minus 4 gives you 4. देखो स्टेटमेंट को पढ़ो फटाफट से. 1/4 of 1/4 means 1/4 of number x minus 4. उसमें से हमने minus 4 कर दिया. gives you 4. Okay, the next is if you take away 6 from 6 times y. आप लोग 6 times y में से टेक अवे लेना है ना, 6 ले लेते हो तो आपको मिलता है 60. यस, इस तरीके से आएगा. इफ यू टेक अवे 6 किस में से ले रहे हो? 6 टाइम y में से. 6 टाइम y में से आप 6 ले रहे हो तो आपको कितना मिलता है? 60 मिलता है. तो इस तरीके से इसको हमें लिखना है. नाउ द नेक्स्ट इज इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z you get 30. If you add 3, आप 3 किस में ऐड कर रहे हो? 1/3 ऑफ z में. ओके, 1/3 ऑफ z में आप कितना ऐड कर रहे हो? ऐड मीन्स सम होता है. कितना ऐड कर रहे हो? 3 ऐड कर रहे हो तो आपको आंसर मिलता है, सॉरी यहाँ पर 30 मिलता है. ओके, तो इस तरीके से हमने अपने इक्वेशंस को फॉर्म किया है. सो स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. In the 5th question, just 4th के अपोजिट करना है. 4th में हमें दिया था स्टेटमेंट और इक्वेशंस लिखने थे. तभी इस एग्जाम्पल में हमें इक्वेशंस दिए तो उनके हमें स्टेटमेंट्स लिखने हैं. सो फर्स्टली p plus 4 is equal to 14. So how to write the statement of this number? The sum of number p and 4 is 40. आएगा इस तरीके से. The sum of number p and 4 is 40. Second, 7 subtracted from m is 3. ऐसे लिखेंगे. मीन्स m में से 3 को 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया? 3 आया. ओके, मीन्स 2 टाइम्स m. नेक्स्ट इज 2 टाइम्स m is 7. इस तरीके से आएगा. देन the number m is divided
by 5 gives 6 मीन्स नंबर को हमने द नंबर ऑफ m को हमने 5 से डिवाइड किया है तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ पर, सॉरी 3 है ना, मैंने 6 लिख दिया 3. द नेक्स्ट इज the number m is यहाँ पर लिखते 3 times m is divided by 5 gives 6. ओके, मीन्स 3 टाइम्स m को हमने 5 से डिवाइड किया है तो हमें क्या आंसर मिला 6. ओके, नाउ 3 टाइम्स p प्लस 4 gets you 25. Okay, then here if you take away 2 from 4 times p you get 80. आएगा ऐसे, if you take away 2 मीन्स आप 2 को 4p में से लेते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है 80 मिलता है. देन हियर इज p is divided by 2 plus 2 is 18 मीन्स p को हमने बाहर 2 से डिवाइडेड किया है देन प्लस 2 किया है तो हमें क्या आंसर मिला है 18. तो इस तरीके से हमें अपने इक्वेशंस के स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay student, now our next examples we have to see in our next videos. Thank you. Have a good day.